नमस्ते दोस्तों, मैं हूं यशवंत तिवारी। मेड डिवाइस सर्कल की इस पॉडकास्ट सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपके सामने आईवीडी इंडस्ट्री के एक से एक नगीनाओं को और महारथियों को पेश करते हैं। तो इस बार भी हमारे जो गेस्ट हैं वो एक बहुत बड़े महारथी तो हैं ही, उसके साथ साथ बहुत लोगों के साथ उन्होंने जो रोल अदा किया है वो सारथी का भी रोल अदा किया है। तो हम आज के गेस्ट को आमंत्रित करते हैं उनके बारे में बताएं, और लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपना परिचय खुद दें, क्योंकि मेरी वो हैसियत ही नहीं कि मैं उनका परिचय दे पाऊँ। लेकिन मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए उनका स्वागत करने में। श्रीमान निपुण सेठ। निपुण जी, आपका हार्दिक स्वागत है। Thank you, Yashwant. I'm honored. I'm honored to be here on this seat, which is ornamented by so many stalwarts of IVD industry, and I'm really honored to be here. And thank you very much for very nice introduction with nice words. But then, to be very honest, it's a little bit too much for me. Yeah. Thanks a lot for it. About me, I am Nipun Seth. I started my career in IVD industry somewhere in 1990, and I worked with a company, very humble company. It was a Medica instrument manufacturing company. Worked there for around 6 months, and after that I joined Span Diagnostics. I was there with Span for 4.5 years with a different stage of careers, and somewhere in 1995 I joined Transyscia Biomedicals. After working for 6.5 years with Transyscia Biomedicals and working at the different capacities, different level and different categories, I started a small firm called Diagnostic System. And since then, I have been associated with Diagnostic System, who has been dealing into the IVD products, distribution of IVD products. And that's what is my career introduction. About my personal introduction, my native place is Porobandar. From Porobandar, I migrated to Mumbai somewhere in 1988. I completed my initial schooling and then higher secondary from Gujarat, Porobandar. First year BSc, I did science graduation from Vallabh Vidyanagar, Gujarat, and then completed second year and third year from Mumbai University. So that's what about my educational background and personal background. ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप उस जगह के मूल निवासी हैं जहाँ के गांधी जी हुआ करते थे, जहाँ उनका जन्म हुआ था, और आप यहाँ बम्बई में आए। आपने बम्बई में थोड़ी शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद अपनी नौकरी शुरू कर दी, और नौकरी शुरू में भी लगभग 10, 11, 12 वर्षों तक नौकरी करी। नौकरी करने के बाद आपने अपना व्यापार की शुरुआत की। जो लोग नहीं जानते उनके लिए आप थोड़ा ये बता दीजिए कि आपका शुरुआती जो जीवन था उसमें आपने नौकरी में आप सर्वोच्च पद तक गए, क्या क्या पोस्ट पे आपने काम किया और अपना व्यापार कैसे शुरू किया? Well, I started my career as a sales executive in Medica Instruments, and after that, professional service representative, PSR we used to call it, in Span Diagnostics. Then graduated to technical sales officer, area manager, then senior area manager, RSM, and then I had the national position for the sales and distribution, and also wore many hats related to the zonal head, business unit head, and the product management team manager, team leader. So different hats and different feathers I have been carrying on my head. So it helped me to learn a lot, and then ultimately it helped me to build my business. You were working as an employee in few companies, and in one company you have grown to various levels and you have handled many things. And since we have entered into, I think, diagnostic systems, we have completed 24 years and entered into 25th year right now, right? 25th year we have walked in, and I'm thankful to my mentors, my guides, my customers, well-wishers, and the friends from the IVD industry to help me reach at this level. ओके सर, तो हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, आपने एज एन एम्प्लॉय डिफरेंट लेवल पे हाईएस्ट पोजीशन तक काम किया, आपके अंडर में बहुत सारे लोगों ने काम किया, उनको आप मंथली क्लोजिंग के लिए
ऑर्डर लेने भेजते थे तो बोलते थे कि जा एक्स डिस्ट्रीब्यूटर के पास से 2 लाख का ऑर्डर लेके आ, वाई डिस्ट्रीब्यूटर के पास से 2.5 लाख का लेके आ। आज के तारीख में आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपके पास कोई ना कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर, एरिया मैनेजर मंथली क्लोजिंग, क्वार्टरली क्लोजिंग, हाफ ईयरली क्लोजिंग के लिए ऑर्डर मांगने आता होगा और आपको प्रेशराइज करता होगा कि 2 लाख का नहीं 3.5 लाख का कर दीजिए सर। उस समय आपके दिमाग की मानसिक अवस्था कैसे रहती है, आप क्या सोचते हैं उस समय? Well, when the sales executive or the account manager, when they ask for the orders, normally if, at this point of time they know, and then the understanding what we have is they don't have to, I mean they just say sir itne ka order chahiye, or if it is reasonable we always try to meet their help them achieve their targets, and then help them meet their objectives. If you compare the scenario of what we used to do earlier and then now what is happening is, earlier when we had the distribution network and distributors, we used to call the distributors. There used to be a kind of a relationship between the distributors and the company person. The business model were such that the company person is generating the lead, generating a business, and then doing the personal order booking, and then bringing new customers, new orders to the distributors, giving the order to distributors, and distributor is taking care of the supplies and the logistics things. So that used to be the very, I would say that basic model earlier. And during that process, we also had the arguments and then discussions with distributors. I'll give you example. I had when I started my career in Span Diagnostics, we had a distributor, if you allow me to take the names, Pinky Scientific, Thakkar Bhai. Very nice person. And often we used to have the, वो टाइम पे तो टेलीफोन हुआ नहीं करता, मोबाइल नहीं हुआ करता था, सो लोकल PCO से ऑर्डर पास करना, डिस्कशन करना, ये सब चीज़ होता था. तो कई बार ऐसा हुआ था कि सुबह हमारा दोनों का काफ़ी आर्ग्यूमेंट होता था, डिस्कशन होता था, कभी कभी तू में हो जाता था, और लेकिन उसके बाद में ही सेम डे आफ्टरनून जब भी उनके पास विजिट होती थी तो कभी भी हमको ये नहीं लगा कि हमने सुबह झगड़ा किया हुआ है, और तो एक दूसरे को समझ के संभाल के आगे चलते थे. और अगर तू में हो गई तो कभी भी वो चीज़ को वो दिन तक रहता था, उसके बाद में आगे नहीं जाता था. और कभी भी मंथ एंड आ गया, टारगेट आ गया, तो हम बोलते थे कि ठक्कर भाई हमको इतना सेल चाहिए, इन्वेस्ट तो इंसेंटिव्स हमको मिलेगा. तो ही वुड से ओके फाइन, ठीक है, कितना ऑर्डर चाहिए ले लो, एंड देन वी यूज्ड टू सिट डाउन एंड देन वर्क आउट द रिक्वायरमेंट, एंड देन दिस इज़ हाउ यूज्ड टू हैपन. कहीं पे भी रिलेशनशिप में स्ट्रेस नहीं आता था, जस्ट बिकॉज वी हैड द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़. आज शायद वो चीज़ जो है वो मिसिंग है. Maybe because currently the pressure and the volumes are high, so जो sales executive है, जो front line persons है, उनको expectations थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर वहाँ पे कोई distributor उनके expectations को match नहीं करता है तो वो जो पहले की जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो जो एक रिलेशनशिप और एट द एंड ऑफ द डे रिलेशन बिल्ड मेंटेन करने का जो एक माहौल हुआ करता था, वो शायद अभी कहीं पे मिसिंग है. यहाँ पे अगर एग्जीक्यूटिव के साथ में, मीन्स ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ हुआ है, बट देन इट इज़ व्हाट वी हियर फ्रॉम मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स दैट the moment there is a heated argument or something, they start looking for the alternative distribution channels. So that's what is the difference I have seen. Luckily, I am happy that the companies I am dealing with, I have not gone through this phase so often. But yes, this is a difference what is there at that time and then nowadays. So you mean to say during your time when you were working as an executive or as a frontline manager, distributors were working only as a stock point, and company people used to go and get the orders and they jointly execute the things. That was the main. And in spite of having hot, but it used to have healthy argument for the business growth. Yeah. Nowadays it has turned into personal enmity. I wouldn't say personal enmity, but personal level के stress जो है वो built up हो जाते हैं. Okay.
तो आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में किसी भी कंपनी का जो फ्रंट लाइन सेल्स पर्सन है उसका अप्राइजल होता है, एनुअल अप्राइजल या हाफ ईयरली अप्राइजल, तो ऐसी स्थिति में कंपनियों को चाहिए कि जिस एरिया में वो फ्रंट लाइन सेल्स पर्सन काम कर रहा है वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स का फीडबैक लिया जाए उसको अप्राइज करते वक्त। I think so. It is necessary not because of the personal agreement, arguments and those kind of a thing, but then अगर वो एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में या तो उसको अप्रेजल में शामिल करते हैं, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव का अप्रेजल होता है उसमें उसके जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स है, मे बी वो 8-10 डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल कर रहा है, उसमें से टॉप 2 टॉप 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर के उसको अप्रेजल में शामिल करते हैं, तो there are a lot of things companies will be able to understand about the person's working, and at the end of the day it is going to help companies to build values and then principles and policies which are good for the industry and which are good for the overall growth of a person as well as the company distributor relationship. So I think it is required that if the appraisal form, when there is a appraisal of executives, local distributors, at least a top 2 or top 3 are invited and participate. Not only the appraisal, but it is not about the appraisal of executive itself. Companies also need to do appraise themselves. Correct. At the end of quarter or the half year or the annually. And for doing that, they should invite top 20, top 25 distributors from across the country, and then they should invite and there should be open-hearted and open-minded discussion about how the distributors and company work together for reaching the next level and building the company business in a better way. Because the dynamics are changing and they are changing very fast. By the time company comes to know what is required in the particular area on their own, like depending on their field staff or depending on the their own activities, distributors are there who can give them the first-hand information and first-hand ideas about how to handle the market, or what are the changes happening in the market and what are the actions needs to be done, how the competitors are performing, how the competitors are coming, what are the good things company need to learn from the competitors or from the market. So these are the good interaction which will help ultimately companies to redefine their strategies, redefine their working pattern and grow further. तो निपुण जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सुपरवाइज़र जो मॉनिटर करता है दैट इज़ एन एरियल सुपरविज़न, तो रियल फीडबैक ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ लेकर के उसका फीडबैक लेकर उसको मॉनिटर करके इवेल्युएट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जाएगा और बिजनेस में ज़्यादा अच्छा ग्रोथ आएगा, राइट? यस। ओके निपुण जी, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्योंकि जब आपने डायग्नोस्टिक सिस्टम 24 वर्षों पहले शुरू किया तब तो एक छोटा स्टार्टअप था, आज एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म है। तो इस जो 24 वर्षों की यात्रा है, इस यात्रा के दरमियान आपने ऐसे कौन कौन से लेसन सीखे जो आज अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यंग डिस्ट्रीब्यूटर्स या यंग एंटरप्रेन्योर्स को ये सीख करके उस पर ध्यान देना चाहिए? वेल यशवंत, there are no thumb rules in marketing which one can say that only this works. So there are different models in the sales marketing which can work as long as they are customer centric, and then how it is implemented. Okay. Even the best idea can fail if it is not implemented well. So when I started diagnostic system, I never wanted to make it as a plain distribution firm. It started with the very clear idea of doing something which is different from the routine distribution. So I got tied up with the Diasis India Private Limited as an exclusive marketing associate, where the customer support, sales, marketing and distribution, those activities, entire activities were done by diagnostic system for them. Even the field staff which was to be appointed and the application support was to be given by diagnostic system. Okay. So it was working like a small company within the territory given.
So that's how the diagnostic system started. And then gradually, diagnostic system started acquiring the other brands. And then we started working with a similar pattern where the approach was to reach out to the customers, offer them the solution to their problems and their challenges, and build a brand diagnostic system from the customer's experience. Today, having completed 24 years and starting of 25 years, 25th year, we are entering into 25th year, our biggest asset is the customer, our users. I would say that today the customers are our mentors, our guides, our well-wishers, and at times they have been holding our hands to take us out from the challenges we have faced. So it is, I would say that they are practically partners in progress for us. So the focus has been there on the customer-centric support, offering solutions, and from there, the whatever experience I had from my professional life, that helped me to build that. Basic principle is to be with customers and be the customer-centric. बिजनेस में चैलेंजेस आती है, डायग्नोस्टिक सिस्टम में भी आई है, एंड when there are challenges, there are few things which we have remembered is, it is whenever there is a challenge comes, if there is a intentions are good, the help comes from anywhere. I mean, when your intentions are good and you are giving 100%, you are working well with it. So पूरी कायनात लग जाती है आपको हेल्प करने के लिए. आई हैड दी वेरी peculiar situation once upon a time where I lost my service team, and that loss was, it was sudden, and I had my customer base to serve. But at that time, two gentlemen, one is Mr. Lalit Chauhan from Delhi, and Mr. S.K. Pal from Mumbai. They came forward and they supported me, they supported my customer, they helped me find the service team and trained him to the extent that Mr. Lalit Chauhan deputed one of his best engineer to Mumbai for almost 3 weeks and support my customers, support my users. And at that time, even my customers also, they supported me. They understood the challenges what I had, and they supported me. So this is how it happens, like, when your intentions are good and then you are clear from your heart, and then you're honest to your business, things happens and then people help. So in nutshell, if I say that one is give you 100%, that's what you can do. You cannot do anything more than 100%, so you give your 100%. Believe in yourself, and then help will come from anywhere. And when you have done your 100%, you have been honest, then leave the rest to how the things are going to happen. And then whatever happens, consider that whatever happens for good, because at times, after doing all these things, the situation and then things may not turn, or may not, the output may not be as per what you wish. But I have seen over a period of time that जब ये अपने हिसाब से नहीं होता है, तभी कुछ अच्छा ही होने के लिए जाता है. And then over a period of time, I have seen that we have always, with these challenges and handling these challenges, we have moved further. We have not gone down, or we have gone back. Maybe the speed might be slow or something like that, but we have always moved ahead. So the challenges helps you. Challenges helps you to understand the things better, fine-tune your skills and then situation, and then you do your best. 100% देने के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते. एक बार आपने 100% दे दिया, and then leave the rest. Things will happen will always for good. That's what the faith and trust you have. And then coming out of the challenge is easy. Do your best and leave everything on the God for the rest. ठीक है, no problem, very good.
Second thing, I picked up one very good word from your talks. When you started your diagnostic system ना, you used the word कि हम लोगों को डायसिस की एक्सक्लूसिविटी भी मिल गई. तो एक्सक्लूसिविटी के बारे में मैं थोड़ा समझना और जानना चाहता हूँ. कि एक होता है कि जब कोई नई कंपनी आती है ना किसी टेरिटरी में, तो वहाँ के एस्टेब्लिश डीलर्स को अप्रोच करती है. तो डीलर्स उनको बोलते हैं कि आप मुझे पूरी टेरिटरी के लिए एक्सक्लूसिविटी दे दीजिए, मोनोपोली मांगते हैं. वो नहीं मांगते तो शायद कोई एग्जिस्टिंग कंपनियां जिनके कोई नए प्रोडक्ट्स आते हैं वो नए प्रोडक्ट्स के लिए एक्सक्लूसिविटी मांगते हैं. तो ये एक्सक्लूसिविटी वाला जो अरेंजमेंट है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी से क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए और कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटर से क्या उम्मीद लगानी चाहिए, ये अरेंजमेंट को सक्सेसफुल कैसे किया जा सकता है अगर एक्सक्लूसिविटी शुरू होता है तो? It's when the company wants to sell the product, they go to the distributors and they want that distributor to take up that product and promote those products into the territories or the customers which distributor is handling. So in a way, what they are doing is they want to use distributors' existing network, existing reach, existing penetration power, investment power. So they want to use that distributor's strength to get the business. So they want a commitment from distributor. So at the same time, distributor also asks for certain things in return. So it's a mutual commitment which they are looking from each other. So कोई भी रिलेशनशिप जो है अगर बिना कमिटमेंट का तो वो चलेगा नहीं. और जब भी आपको रिलेशनशिप बिल्डअप करना है तो कमिटमेंट तो देना ही पड़ेगा. तो एक्सक्लूसिविटी इफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज डिमांडिंग, इट्स फेयर, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. अगर कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि डिस्ट्रीब्यूटर हैज़ टू डू सर्टन अमाउंट ऑफ बिजनेस, जो टारगेट रहता है बोलते हैं हम लोग, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड, इट्स अ राइट थिंग टू डू. सो एक दूसरे का कमिटमेंट होना ज़रूरी है. सवाल ये है कि उसको रिव्यू कैसे किया जाए और उसको वो कमिटमेंट को किस तरीके से वो कमिटमेंट को फुलफ़िल किया जाए और कमिटमेंट कैसा होना चाहिए. पहला तो चीज़ ऐसा है कि ऑनेस्ट स्क्रीनिंग होना चाहिए. डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा है, उसके पास गए और उसको एक्सपेक्ट किया कि इसके पास से बिज़नेस करना है, और एक बार वो डिस्ट्रीब्यूटर ने मार्केट में ब्रांड प्रमोट करना शुरू कर दिया तो फिर उसके बाद में तो हमारी ब्रांड जो है वो मार्केट में फैल जाएगी, लोगों को अवेयरनेस आ जाएगी. तो उसके बाद में जो डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे उसको हम अपॉइंट करके आगे चले जाएंगे. सो दैट इज़ वन वे ऑफ. और डिस्ट्रीब्यूटर भी अगर ये सोचता है कि भाई अभी नया आया हुआ है तो लेट मी अर्न मैक्सिमम माइलेज आउट ऑफ इट, मैक्सिमम मार्जिन मुझे मिलेगा उसमें से, और वो प्रोडक्ट को मैं दूसरा कोई आकर के वो प्रोडक्ट को सेट करेगा मेरे सामने, मेरी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज के सामने, तो उससे अच्छा है कि मैं ही लेकर के उसको करूँ और देखता हूँ अच्छा चलेगा तो ठीक है. तो जब ये भावना होती है एक दूसरे को डीच करने की, तो वो कमिटमेंट कभी पूरा नहीं हो सकता है, वो रिलेशनशिप और जो अरेंजमेंट है कभी काम नहीं करेगी. तो सबसे पहली चीज़ है तो जेन्यून कमिटमेंट और जेन्यून अरेंजमेंट होनी चाहिए. अगर वो हो जाती है तो उसके बाद में उसको कैसे रिव्यू करना है, कैसे मॉनिटर करना है, वो सवाल आता है. सो एनी ब्रांड सेटिंग और एनी ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट टेक्स टाइम. नथिंग इज गोइंग टू हैपन ओवरनाइट. तो वो ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा. डिस्ट्रीब्यूटर को भी देखना है कि कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो कैसे चल रही है, कस्टमर के वहाँ पे किस तरीके से उसका फीडबैक आ रहा है, परफॉर्म कैसे कर रही है प्रोडक्ट. ये सब चीज़ के लिए उसको भी टाइम देना पड़ेगा कंपनी को, और कंपनी को भी टाइम देना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर को कि वो ब्रांड को कैसे चलाना है, किस तरीके से वो प्रमोट करता है. तो आईवीडी इंडस्ट्री में कोई भी कस्टमर ओवरनाइट ब्रांड चेंज नहीं करता है, तो उसको टाइम लगता है, तो वो टाइम देना पड़ेगा. अभी वो टाइम का इश्यू ऐसा है ना कि एक सवाल है आपको कि अगर आपको अहमदाबाद से मुंबई आना है, तो अहमदाबाद से मुंबई आना है तो आपको पता है कि मुझे 8 घंटा 9 घंटा का टाइम लगने वाला है, और आपने बड़ौदा क्रॉस कर दिया या तो आगे जा कर के भरूच क्रॉस कर लिया और आपके टायर में पंचर हो गया, बराबर है. तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, बराबर है. हो गया, टायर पंचर हो गया, आपकी जर्नी है 1 घंटा 1.5 घंटा रुक गई, आप क्या करेंगे? वापस अहमदाबाद चले जाएंगे? उसको जो उस समय जो इश्यूज आए उसको रिपेयर करेंगे. जैसे टायर पंचर हुआ है तो उसको पंचर को रिपेयर करवाएंगे. या फिर क्या करेंगे कि आपका गाड़ी में पंचर हो गया है, फिर दूसरा रास्ता ढूंढ करके वापस निकल जाएंगे कि क्या करेंगे? जब आपके सामने रास्ता तो क्लियर है, पंचर हुआ है गाड़ी में, बराबर है. आप अपनी जर्नी बंद नहीं करते,
आपकी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, बराबर। तो इसमें भी वैसा ही है कि जब भी आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक्सक्लूसिविटी अरेंज की हुई है, इट शुड बी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, 2 साल 3 साल या जो भी है आप, क्योंकि वो पता है कि वो ब्रांड सेट होने में टाइम लगने वाला है। और वो जब भी वो जर्नी शुरू की है, वो जर्नी में किसी रीज़न की वजह से, वेदर इट्स अ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस है या तो डिस्ट्रीब्यूटर का वहाँ पे कोई इश्यूज आ गया है या कुछ भी हो गया है, अगर उसकी वजह से वो जर्नी में डिले हो गया या तो कुछ दिक्कतें आ गई, वो जर्नी को डिसकंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। दैट जर्नी शुड कंटिन्यू। फाइंड द सॉल्यूशन, टायर रिप्लेस करो, टायर रिप्लेस करके वो जर्नी वापस शुरू करो, जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करो। सो जो रिव्यू होने चाहिए वो रिव्यू होने चाहिए कि मैंने कितना जर्नी पास किया हुआ है और आगे कैसे जाना है, उसके लिए वो रिव्यू होना चाहिए। वो रिव्यू इसलिए नहीं होना चाहिए कि अभी मुझे रूट बदली करना है, गाड़ी बदली करना है, वो सब वैसा तो नहीं होना चाहिए। तो वेंस यू हैव दिस कमिटमेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड, 3 साल 4 साल का जो भी आपने एक्सक्लूसिविटी करना है, ब्रांड नहीं है तो उसको टाइम लगेगा, तो उतना तो एक रीजनेबल टाइम फ्रेम देना चाहिए। और वो टाइम फ्रेम में रिव्यू जो होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए कि अभी आगे जाना है, अभी तक का माइलस्टोन हमने कैसे क्लियर किया हुआ है, अभी आगे जाना है तो किस तरीके से करना है। कहीं पे भी ऐसा वो जर्नी को आधे रास्ते में छोड़ करके दूसरा रूट लेना या तो दूसरा व्हीकल लेना, वो रिव्यू नहीं होना चाहिए। तो प्रोबेबली ये अगर इस तरीके से अगर एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट वगैरह अगर काम करती है तो आई एम श्योर दैट कि डिस्ट्रीब्यूटर भी मन लगा के काम करेगा और कंपनी भी जो है वो भी ब्रांड को अच्छे तरीके से सेट कर पाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी काउंट्स। स्टेबिलिटी आईवीडी इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी काउंट्स। स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है तो कस्टमर वो अनस्टेबल ब्रांड को हाथ भी नहीं लगाते। देयर आर सो मेनी ब्रांड्स इन इंडिया, कई सारी ब्रांड्स आई, इंटरनेशनल ब्रांड्स आई और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स एक के बाद एक के बाद एक बार चेंज किए। वो ब्रांड का ग्रोथ अटक गया है, या तो निग्लिजिबल लेवल पे है और या तो फिर वो गायब हो गई है। सो दिस इज़ नॉट ओनली फॉर आईवीडी इंडस्ट्री बट मे बी ट्रू फॉर सो मेनी अदर इंडस्ट्रीज विच इज़ अ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं। बात का सारांश यही है कि जहाँ एक्सक्लूसिविटी का अरेंजमेंट होता है उसमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए और एक्सक्लूसिविटी का पीरियड पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए और उस पीरियड में एक दूसरे के साथ कमिटमेंट के साथ कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर को चलना चाहिए। जो कि आपने उदाहरण देके बताया, अहमदाबाद से बम्बई आना है, अगर टायर पंक्चर हो गया तो टायर को में रिपेयर करवाए, ना कि ड्राइवर बदले, ना ही रूट बदले, ना ही गाड़ी बदले। ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मैं अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहता हूँ। ऐसा देखा जाता है कि देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। फाइनेंशियली वेरी साउंड, फाइनेंशियली मीडियोकर, फाइनेंशियली पुअर, अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कंपनियां स्कीम निकालती है। फॉर एन एग्जाम्पल 10+1 वो बढ़ती है कि उसके स्लैब्स बढ़ते जाते हैं, 20+2 की बजाय 20+3 हो जाते हैं और वही स्लैब आगे बढ़ते बढ़ते 100+30 या 100+35 भी हो जाता है कई बार। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि जो बड़े फाइनेंशियली रिच डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो लोग बड़ा स्लैब उठा लेते हैं, बड़ी स्कीम ले लेते हैं, जिसमें उनकी लैंडिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है और वो कम प्राइस पर लेकर के दूसरों की टेरिटरी में, जो उसकी उनकी खुद की असाइंड टेरिटरी नहीं है, उसमें वो लोग सस्ते दामों में बेचने लगते हैं और वहाँ का एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर परेशान हो जाता है। उसके बाद जो परेशान डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों को अप्रोच करता है और रोता है कि भाई मेरा कस्टमर चोरी हो गया, मेरे कस्टमर में टेरिटरी में दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर माल डाल के चले गया, और कंपनियां भी उस समय हेल्पलेसनेस फील करती है। तो ऐसी स्थिति को कैसे एड्रेस करेंगे और हैंडल करना चाहिए? यशवंत, ये ऐसा सवाल है ना, ये पेंडोरास बॉक्स है। हाँ, अगर इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे तो हो सकता है कि ये पॉडकास्ट हो के अगले 10 पॉडकास्ट कम पड़ेंगे। तो इसको एकदम संक्षिप्त में कहेंगे या तो देखेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में इसका जवाब हो सकता है। कोशिश करूँगा जितना कम टाइम में दे सकता हूँ। 1990 में जब भी मैंने करियर शुरू किया, वो टाइम पे एक टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जो लॉजिस्टिक पार्टनर्स हुआ करते थे मेनली, और वो स्टॉक लेकर के चलते थे। कंपनी के जो लोग थे उनका रोल था कि कस्टमर विजिट करना, कस्टमर को ब्रांड प्रमोट करना और बिजनेस जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूटर को पास ऑन करना, और डिस्ट्रीब्यूटर विल सप्लाई द प्रोडक्ट्स टू देम। सो दिस वाज अ वेरी कॉमन स्ट्रक्चर एट दैट टाइम।
दूसरा चीज़ था कि वो टाइम पे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में इतनी सारी रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती थी, या तो लेबोरेटरीज नहीं होती थी और डिमांड कम हुआ करती थी। तो वो टाइम पे ऐसा होता था कि वहाँ पे से या तो कस्टमर्स, अभी फॉर एग्जांपल मुंबई बोलेंगे तो नासिक या तो जलगांव धुलिया वैसा जो एरिया है वहाँ से कस्टमर्स या तो कस्टमर्स खुद आते थे बॉम्बे, प्रिंसेस स्ट्रीट जो दवा बाजार के नाम से जानी पहचानी थी, वहाँ पे आकर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास से प्रोडक्ट लेकर के जाते थे, या तो ऑर्डर लिखा करके जाते थे और डिस्ट्रीब्यूटर फिर उसको ट्रांसपोर्ट में वगैरह में भेज देता था। या तो फिर वहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर, अगर कोई छोटा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने शुरू किया था और कंपनी के पास उसका रीच नहीं था, तो वो आकर के प्रोडक्ट लेकर के जाता था। और दिस इज़ व्हाट 1990 में हुआ करता था। स्लोली टेरिटरीज़ में लेबोरेटरीज बढ़ती गई, ग्रोथ आता गया, डॉक्टर्स बढ़ते गए और वहाँ पे बिज़नेस बढ़ता गया। तो फिर जैसे बिज़नेस बढ़ा तो फिर कंपनी ने वहाँ पे फील्ड स्टाफ का विज़िट शुरू कर दिया, या तो एक हेडक्वार्टर से कवर करते थे, या तो वहीं पे हेडक्वार्टर बना करके वहीं पे लोकली एक बंदे को रखा और कस्टमर को वहाँ पे सर्विस देने के लिए ये सब सेटअप किया। जब ये सब बिज़नेस बढ़ते गया, ये सब चीज़ हुआ, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप की भी ज़रूरत पड़ती गई। ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर आए, नए लोग आए और डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप वहाँ पे शुरू हुआ। उसमें ये भी हुआ कि कंपनीज़ ने कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताया कि भाई आप अपना सेल्स मार्केटिंग टीम रखिए। तो अपना सेल्स करने के लिए या तो ये कंपनी ने ही डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाया कि भाई आप अपने सेल्स के पर्सन रखिए, अपने एप्लीकेशन सपोर्ट रखिए, अपना ये सब चीज़ कीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर एक जो लॉजिस्टिक पार्टनर था उसमें से एक अलग स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग इंटरमीडियरी करके आ गया, जिसको फिर बहुत सारे नाम दिए गए, चैनल पार्टनर, बिजनेस एसोसिएट, मार्केटिंग एसोसिएट्स, वैसे बहुत सारे नाम से वो जाना गया। तो वो मॉडल चेंज हो गया। सो डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना रोल चेंज किया। कंपनियां ने अपना जो फील्ड स्टाफ है उनकी रीच बढ़ाई। पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रैवल करके बड़े सेंटर में आकर के मटेरियल लेके जाया करते थे, उसके बदले में कंपनी डायरेक्ट वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को वही एरिया में मटेरियल देने लगी। एक ये भी हुआ कि कंपनी के लोग जो थे, जो प्रोफेशनल्स थे आईवीडी में, वो आईवीडी प्रोफेशनल जैसा कि मैं बिजनेस में आ गया और अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप शुरू किया। तो वो टेक्नो कमर्शियल प्रमोशन शुरू हुआ। तो पूरे बिजनेस मॉडल की खिचड़ी हो गई। रोल जो है इंटरचेंज हो गए, ओवरलैपिंग हो गए। उसमें पहले जो होता था कि छोटे डिस्ट्रीब्यूटर जो थे वो मुंबई आकर के माल लेके जाते थे, वहाँ पे ऑथराइजेशन कुछ था नहीं, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हुआ करता था, तो पहले लेके जाते थे। अभी क्या हो गया कि अभी लॉजिस्टिक्स कुरियर सर्विसेज काफ़ी पॉपुलर हो गई है, अच्छी भी हो गई है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर पहले अपनी जगह पे बेच करके, डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स बाहर से डिस्ट्रीब्यूटर आकर के माल लेके जाते थे, उसके बदले में वो अभी सप्लाई करने लगा वहाँ पे डायरेक्टली। तो वहाँ पे टेरिटरी रिस्ट्रिक्शंस निकल गए, क्योंकि फिर उसको जहाँ पे से भी ऑर्डर मिल रहा है वहाँ पे वो सप्लाई कर रहा है। और ये पूरा का पूरा जो मॉडल है वो चल रहा है। इसमें नीड एंड ग्रीड दोनों ही शामिल है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है एक जगह पे, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर एक जगह पे रह करके दूसरी जगह पे माल बेच रहा है, जो टेरिटरी डिमार्केशन के बाहर माल बेच रहा है। वो क्यों बेच रहा है? क्योंकि कोई ले रहा है, कोई लेने वाला है, इसलिए वो बेच रहा है। अभी लेने वाला क्या है? अभी जैसा कि मार्केट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में आना है। आईवीडी इंडस्ट्री में खास करके ज़्यादा करके जो कंपनीज़ में काम किए हैं बंदे लोग, या तो जो एग्जीक्यूटिव्स है, प्रोफेशनल्स है, उनको भी एक एम्बिशंस है कि उनको डिस्ट्रीब्यूशन में आना है। तो दो मॉडल है। एक तो आप प्रोडक्ट ऐसे लेके आओ और आप वो प्रोडक्ट को बेचो, अपनी खुद की स्टैंडिंग क्रिएट करो, खुद की ब्रांड जो है वो लेके आओ, या तो कोई ऐसी कंपनी के साथ में डील करो जो कंपनी वहाँ पे पहले नहीं है, वो प्रोडक्ट लेकर के आप उसको प्रमोट करो और ब्रांड को बिल्टअप करो
वो एसोसिएट, जैसा कि एक एग्जांपल था कि एक्सक्लूसिविटी वगैरह का, वैसा करके अपनी ब्रांड, अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, अपनी कंपनी को खड़ा करो। दूसरा ऐसा है कि वो एरिया में जो प्रोडक्ट चल रही है, जो कस्टमर ऑलरेडी मांग रहे हैं, जो कस्टमर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट को आप बेचो। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास खुद की डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है और कस्टमर के पास वो जाता है, कस्टमर जो है, यूज़र जो है, वो उसको बोलता है कि मैं तो ये पर्टिकुलर XYZ ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ, तुम मुझे XYZ ब्रांड जो है वो मुझे ला करके दो, तो मैं तुमसे लेने का शुरू करूँगा। सो इसमें कस्टमर का मोटिव है कि उसको जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिले। डिस्ट्रीब्यूटर का ये ऐसा है कि उसको लालच हो जाती है कि ऑलरेडी मेरे जो है किसी का बना बनाया बिजनेस है, या तो कस्टमर मुझसे मांग रहा है, मैं कहीं से 2 पैसा फ़ायदा करके दूंगा तो मेरा बिज़नेस बिल्टअप हो जाएगा, कस्टमर की लैब में या तो कस्टमर के सेटअप में मुझे एंट्री मिल जाएगी। तो फिर वो ढूंढता है कि वो कहाँ से उसको प्रोडक्ट मिलेगी। उसको 2 पैसा सस्ती चाहिए, क्योंकि 2 पैसा सस्ती बेचनी है उसको, तो उसको सस्ते में लेकर के सस्ते में बेचना है। तो ये चीज़ की वजह से वो आजू बाजू में वो लोकल एरिया में कोई ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, वहाँ से वो प्रोडक्ट लाने की कोशिश करेगा। बट हो सकता है कि बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, डिस्ट्रीब्यूटर का खुद का कस्टमर बेस है, उसको अपने अपने कस्टमर बेस को प्रोटेक्ट करना है, तो वो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को उतना एंकरेज नहीं करेगा, उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो सिचुएशन ऐसी हो जाती कि फिर वो जो बंदा जो है वो अपनी टेरिटरी में उसको मटेरियल चाहिए तो वो बाहर से मंगाएगा जहाँ से, और जो होलसेलर है जिसने बड़ा लोट लेकर के, स्लेब लेकर के स्कीम रखी हुई, तो उसके पास वो पावर है और उसको तो सिर्फ बेचना है। सो दैट्स अ रीज़न डिस्ट्रीब्यूटर को वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर शुरू करता है बिजनेस, उसको कस्टमर को सस्ते में लेकर के सस्ते में देना है, तो फिर बाहर से आउटसोर्स करना शुरू करता है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर बल्क में लेकर के बैठा हुआ है, जो जिसके पास बड़ी स्कीम आई हुई है, वो उसको मटेरियल बेचता है। तो दिस इज हाउ द टेरिटरी डिमार्केशंस निकल जाते हैं। तो ये एक इकोसिस्टम हो गई है। और इनफैक्ट ऐसा हो गया है कि अभी आज नहीं तो कल टेरिटरी डिमार्केशंस जो है वो उसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होते जाएगा। गवर्नमेंट खुद बोलती है कि वन नेशन वन टैक्स, तो जो पहले की जो बॉर्डर्स वगैरह जो थी वो सब तो निकल रही है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर कहीं पे बैठ करके कहीं पे भी मटेरियल बेच सकता है। तो ये सब चीज़ हो रही है, तो एक इकोसिस्टम बन गई है उसमें। और ये जो अभी आगे की सिस्टम बन रही है उसमें जब तक प्रॉपर एथिक्स और प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं आएगी तो डिफ़िकल्टी तो आने वाली है। आप कंपनी के ऑलरेडी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनकी टेरिटरी में मटेरियल की ओर से आ रहा है, तो वो जो सेल्स का जो बंदा वहाँ पे मेहनत कर रहा है उसको उसकी क्रेडिट नहीं मिल रही है। तो दिस आर दी चैलेंजेस फ्रॉम दिस इकोसिस्टम। तो ये जब तक ये इकोसिस्टम चेंज नहीं होगी, उसको डिसिप्लिन में नहीं लाएंगे, तब तक इसको चेंज करना डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है। एक तो जो बंदा वहाँ पे मटेरियल लेने को तैयार है, मांग रहा है करके कोई बेच रहा है, तो उसकी डिमांड कैसे कम करें। तो ये जो चीज़ ऐसी है कि सबसे पहले तो लोगों को समझना पड़ेगा कि उनको अगर खुद का स्टैंडिंग करना है, खुद का मार्केट में अगर उनको वैल्यूज़ लाना है, तो वैल्यू बेस्ड बिजनेस अगर करना है तो उनको जो रेडीमेड मार्केट है या तो रेडीमेड प्रोडक्ट्स जो बिक रही है, शायद हो सकता है कि वो उनको ऐसा लगता है कि उससे मेरा टर्नओवर बढ़ेगा, बट देयर इज़ अ थंब रूल। आप प्राइस पे चेंज करो कस्टमर को, आप प्राइस पे चेंज हो जाओगे। आप मेरिट पे चेंज करो तो मेरिट पे चेंज होंगे, लेकिन उसको टाइम लगेगा। तो आपकी जो फुटप्रिंट है या तो आपके जो जो एंट्री है कस्टमर की लैब में, अगर आपने प्राइस पे बेसिस पे की है तो प्राइस के बेसिस पे निकलने में टाइम नहीं लगेगा। अगर मेरिट पे की है, अपनी सर्विस, अपनी वैल्यूज़ उसके ऊपर की हुई है, तो आप वहाँ पे लंबा टाइम तक कस्टमर के वहाँ पे कस्टमर के माइंड पे, कस्टमर के बिजनेस में आप लंबा टाइम तक रह सकते हो। और अगर वैल्यू बेस किया हुआ है तो कस्टमर आपको ये नहीं पूछेगा कि मुझे सस्ता ला के दो, कस्टमर आपको बोलेगा मुझे ये ला के दो, अपने हिसाब से ला के दो। तो दिस इज़ व्हाट हाउ द न्यू बिजनेस जब भी शुरू करना है उसके हिसाब से काम करने के। तो ये जो एक माइंडसेट जब भी चेंज होगा तो वो टाइम पे हो सकता है कि
लोकल एरिया में जो बाहर का इन्फिल्ट्रेशन की जो डिमांड है बाहर से मटेरियल लाने की, वो थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरा चीज़ है कि इसमें कंपनी लेवल पे कैसे चेंज होगा। जैसा आपने बोला कि कंपनी हेल्पलेस हो जाती है, सवाल ये है कि कंपनी को इसके ऊपर कंट्रोल करना है या नहीं करना है। चाहते हैं लेकिन कैसे करें? अगर करना चाहते हैं तो देयर आर वेज एंड मीन्स, अगर जिसको करना ही नहीं है तो उसको कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि अभी एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आपके घर में चोरी हो जाती है और चोरी हो जाती है तो आप पुलिस में जाते हैं कंप्लेन करने के लिए। तो पुलिस आपको ये बोलेगा कि भाई तुम एक काम करो, चोर कहाँ पे है, चोर का मुझे प्रूफ ला के दो, किसने को चोरी किया है, क्या किया है, आप मुझे वो सब ला के दो, फिर मैं जा कर के चोर को पकड़ूंगा। वैसा पुलिस बोलेगी आपको? नहीं बोलेगी। कैसे बोल सकती है? नहीं बोल सकती। पुलिस का काम है वो, बराबर आपके घर में चोरी हुई है, आपने कंप्लेन की मेरे घर में चोरी हुई है, तो पुलिस को काम करना है, पुलिस को पता है, पुलिस को यहाँ तक भी पता होता है कि वहाँ पे वो एरिया में चोरी किया तो चोरी करने वाला कौन होता है, मीन्स उतना उनका नेटवर्क रहता है, तो उसको चोर को पकड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर उसको सही में पकड़ना है तो। लेकिन अगर वो पुलिस आपको बोलेगी कि आप ले सब चीज़ ला कर के दो, या तो प्रूफ ला के दो किसने चोरी किया है, ये सब किया है, तो कैसा रहेगा, अजीब लगेगा। तो कई बार कंपनी बोलती है डिस्ट्रीब्यूटर को कि आपकी टेरिटरी में माल कौन डाल रहा है, किसने डाला हुआ है, आप प्रूफ ला के दो तो हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। वो वैसे रीज़न जो है वो कंपनी की जो इंटेंशन है वो क्लियर करती है, ठीक है। कंपनी को तो इसमें क्या होता है कि जब ये टेरिटरी डिमार्केशन या तो जो इन्फिल्ट्रेशन होता है उसमें जब तक कंपनी नहीं चाहती है, या तो कंपनी के लोकल टीम मेंबर्स जो है वो उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तब तक वो नहीं हो सकता है। और अगर कंपनी चाहे तो उसको बंद कर सकती है। तो एक है डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे कि भाई बाहर से मटेरियल लाना है, या तो डिस्ट्रीब्यूटर का माइंडसेट चेंज करना है कि उसको जो प्रोडक्ट चल रही है उसको ही सस्ता करके बेचना नहीं है, अपनी वैल्यू कम नहीं करनी है, अपनी सर्विस की वैल्यू कम नहीं करनी है, वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि कंपनी को जो टेरिटरी इन्फिल्ट्रेशन होना है उसके ऊपर ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंटली काम करना पड़ेगा। और ये जो टेरिटरी इन्फिल्ट्रेशन जो होता है तो कभी B2C नहीं होता है, वो B2B होता है मोस्टली। ऑलमोस्ट 98% 99% तो B2B ही होता है। B2C होता है तो वो एक अलग तरीके से होता है, तो वो एक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स का और कस्टमर का और वो वर्किंग होता है जिसमें कंपनी इन्वॉल्व होती है, बट देन इट्स प्रॉपरली डिफाइंड वे इट इज़ बीइंग डन। अनडिफाइंड वे या तो अनऑर्गेनाइज वे जो है वो B2B होता है। तो B2B में कंपनीज के पास आज के दिन में सब पावर्स है, कंपनी के पास टेक्नोलॉजीज़ है, और अगर कंपनी चाहे तो डिस्ट्रीब्यूटर जो उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास से B2B की सेकेंडरी सेल मांग सकती है। वो अगर मांगती है कि भाई आपने B2B जितने भी सेल किया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है उनको अगर चाहिए तो GST रिटर्न्स भी ले लिया तो उसमें GST नंबर से मालूम पड़ जाएगा कि ये बंदे ने कौन से स्टेट में और कहाँ कहाँ पे माल बेचा हुआ है। तो कंपनी चाहे तो ये सब कर सकती है द मोमेंट वो उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो B2B सेल अलग टेरिटरी में किया हुआ है, तो अगर उनको एक्शन लेना है तो इजी हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ वो अगर वो टेरिटरी में जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर जो कंप्लेन कर रहा है उसके पास से मांगेंगे तो नहीं मिलने वाला है। तो प्रशासन की असफलता माना जाएगा, सिस्टम फेल्यूर है और दूसरों पे ब्लेम गेम। तो ये जो चीज़ है, तो जब तक कंपनी खुद डिसाइड नहीं करती है कि मुझे टेरिटरी इन्फिल्ट्रेशन को कवर रोकना नहीं है, मिस रोकना है, तो भी जा कर के वो हो सकता है। तो ये दो चीज़ हो गई। ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर जो है जो लोकल एरिया में काम करते हैं, हमारा एक ये भी मानना है कि अगर जितना भी लोकल लेवल पे कोलैबोरेशन होगा या तो लोकल लेवल पे काम होगा और ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी मेंटेन होगी तो हो सकता है कि इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पे जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो अपने एरिया में जो गिने चुने डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके साथ में बैठ करके बात करके अगर एक प्रॉपरली जहाँ पे उनका पेनिट्रेशन नहीं है वहाँ पे मटेरियल पेनिट्रेशन करने के लिए अगर ये सब यूज़ करते हैं तो ये सब चीज़ हो सकती है।
बड़े स्कीम्स वगैरह जो है अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स ग्रुप बना करके मटेरियल लेते हैं तो शायद वो भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि जब भी कंपनी बड़ी स्कीम्स या तो मार्जिन बेनिफिट पास ऑन करती है डिस्ट्रीब्यूटर को, कि जो डिस्ट्रीब्यूटर 100 किट बताता है उसके बदले में उसको 200 किट देते हैं और उसमें प्राइस बेनिफिट वो सब बेनिफिट देते हैं, तो इसलिए होता है नॉर्मली कि उसका मार्केट पेनिट्रेशन करना है, कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ाना है। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूटर ये बड़ी स्कीम उठाता है तो उसको कंपनी का मार्केट शेयर, उसको जो टेरिटरी दिया हुआ है वहाँ पे बढ़ाना है। वो अपनी टेरिटरी है बाहर, जो कंपनी के ऑलरेडी दूसरे कस्टमर्स है उसको ये मटेरियल देने का शुरू करेगा तो उसमें कंपनी का कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता है, वो तो सिर्फ डंपिंग होता है या तो फिर वो माल फेंकने का जो परिभाषा होती है वैसा होता है। तो उसमें कहीं पे भी किसी को भी बेनिफिट नहीं होता है और इनजस्टिस ज़्यादा है। तो कंपनी को भी ये देखना है कि जब भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को उसकी रिक्वायरमेंट 100 किट की है तो ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो टेरिटरी का, वो समझ करके उसको मटेरियल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूटर को खुद को समझना है कि भाई उसको अपने कस्टमर्स को, उसके पास अगर प्राइस बेनिफिट आया है, स्लैब का जो बेनिफिट आया हुआ है, तो अगर पास ऑन करना है तो वो अपने कस्टमर्स को पास ऑन करे। अपने कस्टमर्स को वो डिस्काउंट भी दे सकता है, जो प्राइस कम कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, उसको फ्री में भी दे सकता है, फ्री में 2 देनी है तो 2 दे सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। बट वो फ्री +2 भी दे सकता है। तो उसको करना है अपने कस्टमर के पास, जो करना है करे, या तो फिर वो ब्रांड की जो कंपटीशन है वो ब्रांड को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए करे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वही ब्रांड जो कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है वो उसके कस्टमर को कैप्चर करने के लिए ये अगर प्राइस बेनिफिट यूज़ करता है तो वो मेरे हिसाब से अनहेल्दी है, और दैट इज़ नॉट अ पर्पज़ ऑफ कंपनी सेलिंग दी स्कीम्स और कंपनी सेलिंग। तो कंपनी को भी ये समझना है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी समझना है, और जब भी ये इकोसिस्टम में बैठ कर के बात करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे तो रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर इसको सॉल्यूशन को निकालने के लिए वो जो विल पावर जो चाहिए वो जब तक बिल्डअप नहीं होता है तब तक ये इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करना डिफ़िकल्ट है। मित्रों, श्रीमान निपुण सेठ से वार्तालाप करने में अभी तक तो हमें बहुत मज़ा आया और इसी प्रकार से आगे आता भी रहेगा, क्योंकि इनका प्रोफेशनल जीवन या तो इनका डायग्नोस्टिक जीवन वो इतना बड़ा है कि इसको एक छोटे से पॉडकास्ट में नहीं समेटा जा सकता। तो इस पॉडकास्ट की सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखते हुए इनको अगले पॉडकास्ट में लेके जाएंगे और निपुण जी से कहेंगे कि एक छोटा सा ब्रेक ले ले और अगले पॉडकास्ट के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद निपुण जी, हम आपसे बहुत जल्द ही मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, और आपको भी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कंटिन्यू वॉचिंग, थैंक यू।